Good morning, friends. Happy Teachers Day. You will discuss about tissues. Just you studied about the organization, lower level of organization, higher level of organization, the basic fundamental unit of life is called as the cell. When that cell combines to form tissues, tissue means the group of cells having same structure, same origin and same their functions. In case of that tissues, you will study about the differences in plants and animals. Now today we will start about the plant tissues. We will start about the plant tissues. So first of all, try to understand, in case of plant tissues, they are further classified into, that is the different 3 points. The first point is that is the meristematic tissue, meristematic tissue, meristematic tissue, and the second one is called as the permanent tissue. Permanent tissue. Meristematic tissues and permanent tissue. So in case of this meristematic tissue, we will discuss about their characters and their further classification. Permanent tissue again further classified into, that is the two groups. The first one is called as the simple tissue and second one is called as the complex tissue. Complex tissue. Then that simple tissue further classified into the parenchyma. Second one is parenchyma and third one is sclerenchyma. Okay. The complex tissue further classified into the two types. These are called as the xylem and second one is called as the phloem. In xylem again 4 elements are present. In phloem again 4 elements are present. This is the classification of plant tissues. So today discuss in detail about the meristematic tissues. So first of all, try to understand that meristematic tissues are the specialized tissues present only in case of the plants and they are absent in animals. So which are the characteristic features of that special tissues called as the meristematic tissues? In case of this meristematic tissue, first of all try to understand, these tissues are always young. These tissues are always young, means lifetime they are young. Okay. Then the cell wall is very thin. The cell wall is very thin. इसका मतलब है इसका जो सेल वॉल होता है वो बहुत पतला होता है. ये लाइफ टाइम यंग टिश्यूज रहते हैं. उसके बाद ये जो सेल्स है दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. कॉम्पैक्टली अरेंज्ड means that in that cells there is no intercellular space. There is no intercellular space. Just you have to concentrate. Intercellular space means what?
when these cells are get arranged, they are very much compactly arranged, एक दूसरे के नजदीक होते हैं, ये दो सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेस। उसके बाद इन ईच सेल देयर इज अ डेंस cytoplasm, there is a dense cytoplasm, and centrally located nucleus is present. Try to understand. There is a presence of dense cytoplasm, यानी each and every cell में जो साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, और सेल के सेंटर में है ना लार्ज न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसे यहाँ पे लिखा है मैंने, सेंट्रली लोकेटेड उसका न्यूक्लियस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज दैट they have divide and redivide ability, divide and redivide ability। लाइफ टाइम ये जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं, उसकी मदद से सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके साथ उसका मास बढ़ता है। इसीलिए ये जो स्पेशल सेल्स है, प्लांट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अनलिमिटेड होता है। ह्यूमन की तरह, एनिमल की तरह उसके लिमिटेशंस नहीं होते, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट रिवाइज once again, this is the plant tissues, okay। These plant tissues are classified first of all into the two main types. First one is called as the meristematic tissue, second one is the permanent tissue, okay। Then try to understand first of all about the meristematic tissue and then permanent tissue. Permanent tissue further classified into the simple permanent tissue, complex permanent tissue, right। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, राइट। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलेम है, फ्लोएम है। जाइलेम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो चार होते हैं, जिसे हम बोलते हैं वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलेम पैरेन्काइमा, जाइलेम फाइबर्स। वैसे फ्लोएम के होते हैं, दैट इज द companion cells, then sieve tubes, then phloem parenchyma and phloem fibers. So first of all study or discuss meristematic tissues. These tissues are the special type of the tissues which are present only in case of the plant, and only for that purpose the plants are unlimited in their growth, okay, and these are absent in case of the animals. So what are the characteristic feature of these meristematic tissues? These tissues are young, lifetime young, means they are not old tissues, divide and redivide, and they are always young. Then their cell wall is very much thin यानी पतली होती है, right। उसके बाद they are compactly arranged means these cells are get arranged just closely with each other, है ना, एक दूसरे को चिपक के रहते हैं। उसमें there is no intercellular space, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस नहीं होता है, इसलिए there is no intercellular space। देन ईच सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद दे आर हैविंग सेंट्रली लोकेटेड प्रोमिनेंट और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। ईच एंड एवरी सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट होता है, वो क्लियरली दिखता है और उसकी साइज भी बड़ी होती है। उसके बाद they have divide and redivide ability. This is the most important characteristic feature of
दॅट इज द मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. म्हणजे त्यांच्यामध्ये लाईफ टाइम जेव्हा तयार झाल्या तेव्हापासून लाईफ टाइम त्यांच्यामध्ये डिवाइड आणि रिडिवाइड ॲबिलिटी प्रेझेंट असते. ऑल दीज आर द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दॅट इज द व्हॉट मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू. देन further classification of meristematic tissue or types of meristematic tissue, types of meristems or meristematic tissue, right? So they are further classified into the three types: first, second and third. First one is called as the apical meristem. First one is the apical meristem. Second one is called as the lateral meristem, and third one is called as the intercalary meristem. These are the three types. First of all, try to understand these three types: apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. This classification is based on their position. Means meristematic tissues are get classified on the basis of their position. यानी उन टिश्यू की जो लोकेशंस होती है उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर उसको क्लासिफाई किया जाता है और उसके तीन टाइप है. दैट इज द अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अभी यही नाम मैं इस डायग्राम में पुटअप करता हूं. यहाँ पे देख सकते हैं अपाइकल मेरिस्टेम, देन दिस इज कॉल्ड एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड वन इज द लैटरल मेरिस्टेम. ये इसकी डायग्राम है. सिंपल आप इसकी एक्चुअली शूट सिस्टम का पार्ट है या ऊपर एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का, इस डायग्राम में मैंने रिप्रेजेंट किया है. इसके ऊपर ये नोड है, यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है. ये दो नोड के बीच में का जो स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड. ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड है. ये शूट सिस्टम का अपाइकल रीजन है और ये जो पार्ट है ये भी इंटरनोड का है. दिस इज द what that is the structure of that is the plant shoot system which can be indicate that is the three types. apical meristem की position ये यहाँ पे है, intercalary की यहाँ पे दिखाई गई है और lateral का position यहाँ पे. So first of all try to understand what is mean by the apical meristem. Okay, ये जो टाइप्स है आपके समझ में आ गए होंगे और इसका क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्लासिफिकेशन का बेस है उसकी पोजीशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड अपाइकल मेरिस्टेम. ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड अपाइकल मेरिस्टेम आर लोकेटेड एट द अपाइकल रीजन ऑफ शूट सिस्टम एज वेल एज द रूट सिस्टम. यानी अपाइकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द टिप ऑफ स्टेम, रूट एज वेल एज दियर ब्रांचेस. है ना, जो शूट का पार्ट है, रूट का अपाइकल रीजन है और उसके जो ब्रांचेस है उनके अपाइकल रीजन में, उनके टिप रीजन में ये अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है. दिस इज द यंग कॉम्पैक्ट लैरिंज. ऑल दीज कैरेक्टर्स आर एप्लीकेबल फॉर दीज टिश्यूज. ओके, दीज टिश्यूज व्हेन डिवाइड एंड रीडिवाइड to increase the number of cells and automatically they are helpful. Means apical meristems are helpful for increasing the length of that is the plant. यानी ये सपोज प्लांट है, सपोज ये शूट का पार्ट है, राइट. ये एक्चुअली रूट का पार्ट है, ये अपाइकल रीजन है, राइट. तो इसका जो रीजन है ये नीचे बढ़ता है ना, और इसका जो रीजन है ये ऊपर बढ़ते जाता है. यानी प्लांट की शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम ये दोनों ग्रो करने का काम कौन करता है? अपाइकल मेरिस्टेम करता है और इसकी पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई. सेकंड वन लैटरल मेरिस्टेम. आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द लैटरल मेरिस्टेम. ये लैटरल मेरिस्टेम है, ये लैटरल मेरिस्टेम. एक्चुअली द लैटरल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट
साइडवाइज टू स्टेम एंड रूट, साइडवाइज टू स्टेम एंड रूट। अगर स्टेम का भी पार्ट है या रूट का भी पार्ट है और उसका जो साइडवाइज पोर्शन होता है, ये साइडवाइज पोर्शन होता है, उसके यहाँ पे ये लैटरल मेरिस्टेम हमें दिखाई देता है। एक्चुअली ये जो लैटरल मेरिस्टेम है, ये लैटरल मेरिस्टेम उस प्लांट के स्टेम की और रूट का जो गर्थ होता है यानी डायमीटर जो होता है वो बढ़ाता है, यानी डायमीटर बढ़ता है यानी उसका घेर बढ़ता है। सपोज ये देखो, ये सपोज स्टेम है, ये सपोज स्टेम है ना, इसकी ये जो साइड है, इसकी ये जो साइड है, ये लैटरल साइड, राइट। और इस लैटरल साइड को ये लोकेटेड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। अब जब ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी गर्थ जो है वो बढ़ती है, इसका जो डायमीटर है वो बढ़ते जाता है। इसलिए इसका जो बेनिफिट है प्लांट्स के लिए, तो एक्चुअली ये इसका मास बढ़ाता है, गर्थ बढ़ाता है, डायमीटर बढ़ाता है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब प्लांट के स्टेम की या रूट की जो थिकनेस है, अगर थिकनेस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली दीज लैटरल मेरिस्टेम्स हैविंग इंपॉर्टेंस इन दैट इज द सेकेंडरी ग्रोथ, इसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्टेम। अभी जो थर्ड वन है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी यहाँ पे भी पोजीशन इंटरकैलरी की है, यहाँ पे भी पोजीशन है, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। अभी इंटरकैलरी का मतलब क्या है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है ना। ये सपोज ये देखो, एक हम इसको एक इंटर नोड पकड़ेंगे और मैंने यहाँ पे जो मार्क करता हूँ, यहाँ पे मैं ये ऐसे मार्किंग जो मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। जितने मैंने मार्क्स किए हैं उस सभी मार्क्स को हम नोड बोलते हैं। इसके ऊपर देखो, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, राइट। और ये दो नोड के बीच में का जो व्हाइट पोर्शन है इसको बोलते हैं इंटरनोड, इसको बोलते हैं इंटरनोड, इसको बोलते हैं इंटरनोड, इसको बोलेंगे इंटरनोड, राइट। अभी एक्चुअली ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, इस मार्किंग के ऊपर होते हैं, यानी दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड और एट द बेस ऑफ इंटरनोड। ये इंटरनोड के ये बेस को और नोड के ऊपर ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं। और जब इसका डिवीजन एंड रीडिवीजन होता है, इसका डिवीजन एंड रीडिवीजन होता है, तो एक्चुअली क्या करता है ये इस ऑर्गन की लेंथ बढ़ाता है, बीच में का जो पोर्शन है इसकी लेंथ बढ़ाता है, इसको इंक्रीज करता है। एक्चुअली इंटरकैलरी मेरिस्टेम हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ शुगर के। शुगर की हाइट जो बढ़ती है, बाम्बू का प्लांट है उसकी जो हाइट बढ़ती है, जितनी हाइट ज्यादा बढ़ेगी उतना उसमें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा। तो एक्चुअली इंटरकैलरी मेरिस्टेम उस पर्टिकुलर ऑर्गन की जो हाइट है, लेंथ है, वो क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज द अपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जस्ट यू हैव टू शो इन दिस डायग्राम एंड दीज आर द classification of meristematic tissue on the basis of their position। इसका ऊपर पोजीशन है, इसका बीच में पोजीशन है और इसका साइड वाइज पोजीशन है और उसके फंक्शंस है। दिस इज कॉल्ड एज द स्पेशल टाइप ऑफ द tissue present in case of the plant and commonly called as the meristematic tissue। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट प्लांट टिश्यू के बारे में, ये याद रखो परमानेंट टिश्यू पढ़ना है हमें बाद में, राइट। परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे और बाद में फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।